Hello everyone, I'm Dr. Roma Sarnaik and we are starting this conversation series on lung health and lifestyle, which is the hottest topic of the whole world today, I think since 1 year almost, since COVID started. So, on request of many of you, and because of so many questions that I've been getting, I thought you all are going to benefit by knowing the relationship between lung health and lifestyle. And today is our first talk on post COVID and lifestyle. So, we have a very special guest with us today. His name is Dr. Samir Arbat. He is an interventional pulmonologist and the director at One Healthcare. He is based in Nagpur, India, and he'll be answering to many of the queries that are frequently asked about COVID-19. And we had some questions from you all which I'm going to ask him. And today is not it. We have got hold of Dr. Samir Arbat for a few more sessions. So feel free to DM all your queries, questions, and any other topic suggestions that you would like us to, have conversations around in the future talks in this series. So today is about post-COVID and lifestyle. So here we go. So, hello everyone, and we welcome Dr. Samir Arbat today for joining us. So, Dr. Samir Arbat sir has basically been my senior, and I've known him since many years, and he's doing really well in his field. And thank you so much, sir, for agreeing to do this conversation series for us today, because COVID-19 has been like one of the hottest topics around the world, and we are getting so many questions around it. So I'm really glad that we have you here with us today to answer all the questions. And Dr. Samir sir has been doing great in his field, and he's going to give us great answers that is going to satisfy all your questions. So today we are going to talk on post COVID and lifestyle. So sir, would you like to tell us all what is post COVID, because everyone has heard about COVID-19, but I don't think many people might know what post COVID means. Yeah. Hello, everyone, and thank you, Dr. Roma, for giving me the opportunity to be a part of this conversation series. So today we are going to talk about post-COVID. So as Roma has rightly said, a lot of us know about what is COVID-19, and I'm sure most of us have heard about what is post-COVID. But what exactly is post-COVID? So when we talk about post-COVID, or medically it is often called as long COVID, we are talking about all the symptoms and diseases that a patient faces once he's recovered from COVID. So any person who's come COVID-19 positive has a short period of COVID-19 disease, which is basically around anywhere between 7 to 20 days. And whatever happens after that is what is considered as post-COVID. So what exactly is post-COVID? We need to understand one thing, that the SARS-CoV-2 virus, as in the virus which leads to COVID-19, is a virus which attaches to ACE2 receptors in your body, and these receptors are present in all the organs. So what this means is COVID-19 disease does not only affect your lungs, it can affect all the organs of your body. That's why whenever we talk about post-COVID, the diseases range right from your brain, heart, blood vessels, liver, kidney, and the lungs, and everything else. So post-COVID is all the symptoms and all the diseases that might come up in the next few days, as in maybe in a period of 1 to 2 months, or even up to 6 months after you've recovered from COVID-19. Okay. That was really helpful, sir, because many people didn't know what COVID post-COVID was. So, like sir said, I'll just repeat what sir said in Hindi. So, basically, COVID-19 से recover होने के बाद का जो 7 से 20 दिन का समय होता है, तब जब जो भी organs बाकी affect होते हैं COVID के बाद, और जो भी symptoms आते हैं, उसे हम post COVID कहते हैं. तो basically जो लोग कोविड से रिकवर होके उसके बाद वाला स्टेज. Am I correct, sir? Yes. Okay. Yes. Okay. So what are the symptoms, like how to diagnose someone with post COVID? Yes. तो जब भी हम पोस्ट कोविड की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमको ये जानकारी होना जरूरी है कि आपको जो कोविड हुआ था वो माइल्ड था, मॉडरेट था, या सीवियर था. मतलब आपको जब भी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट मिली थी, उसके बाद क्या आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी, क्या आप सिर्फ दवाइयों से घर पे ही ठीक हुए थे, या हो सकता है आपको आईसीयू जाने की जरूरत पड़ी थी. तो इस पे निर्भर करता है कि आगे आपकी जो सिम्टम्स है वो कितने सीवियर हो सकते हैं. सबसे कॉमनली देखा गया है
कि कोविड होने के बाद लोगों को काफी लंबे समय तक, हो सकता है 4 से 6 महीने तक, कमजोरी या वीकनेस रहती है। लोग हमेशा डॉक्टर के पास आके कंप्लेन करते हैं कि मुझे बहुत बार चलने में सांस फूलती है, मुझे कोई भी काम करने में जल्दी से थकान आ जाती है। तो इसे हम पोस्ट कोविड मायल्जिया कहते हैं, जिसमें कोविड रहता है। इसी के साथ में पोस्ट कोविड डिस्निया, मतलब जिसके लिए कई बार डॉक्टर्स आपको इनहेलर नाम की दवाई देते हैं। इसका कारण ये होता है कि कोविड की बीमारी में आपके लंग्स में इन्फेक्शन होता है, और ये इन्फेक्शन जब ठीक होता है तो वहां पे फाइब्रोसिस सेट इन होता है। फाइब्रोसिस मतलब आपके फेफड़े जो है, वहां उसका जो पार्ट है वो काम करना बंद कर देता है, आपके फेफड़ों की ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है, और इस वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। अभी तक हम ये नहीं जानते हैं कि ये फाइब्रोसिस पूरा रिकवर होने के लिए कितना समय लगता है। काफी सारे पेशेंट्स को 7 से 10 दिन में आराम मिल जाता है, और कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको काफी लंबे समय तक सांस की तकलीफ चलते रहती है। तो ये मेन सिम्टम्स है जो पोस्ट कोविड में लोगों में देखे गए हैं। इसके बाद में ये भी देखा गया है कि कई पेशेंट्स को डायबिटीज या हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां कोविड के बाद आ जाती है या बढ़ जाती है। मतलब कुछ लोग को पहले ये बीमारी नहीं थी और कोविड के बाद वो शुरू हो गई है, और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको पहले ये बीमारी कंट्रोल में थी और अभी ये अंडर कंट्रोल नहीं है। इसी के साथ में काफी बार लोगों को ब्रेन स्ट्रोक या पैरालिसिस का अटैक भी आता है। इसका कारण ये है कि कोविड के बीमारी में आपके ब्लड में गठाने बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्लड थिनर दिए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोगों को देखा गया है कि कोविड से रिकवरी के 1 या 2 महीने बाद पैरालिसिस का अटैक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है, जिसके लिए फिर से एक अलग ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी पड़ती है। ये छोड़ के लोगों को हार्ट के प्रॉब्लम्स आते हैं, लोगों को कई बार ब्लड वेसल से रिलेटेड बाकी प्रॉब्लम आते हैं, और हाल ही में देखा गया है कि पोस्ट कोविड स्किन प्रॉब्लम्स भी काफी बढ़ गए हैं। कई लोगों को कोविड के बाद में स्किन इश्यूज आते हैं, इचिंग होता है, रैश होती है, और लोगों को हेयर लॉस के प्रॉब्लम भी देखे गए हैं। तो बेसिकली पोस्ट कोविड में आपको किसी भी ऑर्गन के सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर आपको पिछले 3 से 4 महीने में कोविड हुआ है और आपको कोई नए सिम्टम दिख के आ रहे हैं, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ये पोस्ट कोविड का पार्ट है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। और सर फिर अगर कैसे पता चले, जैसे इन्वेस्टिगेशंस क्या करने चाहिए, क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया इतने सारे ऑर्गन्स है, तो लोगों को कंफ्यूजन होगा। जैसे लोग स्किन डॉक्टर के पास या हार्ट डॉक्टर के पास जाएंगे, तो हाउ टू नो लाइक व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस फॉर पोस्ट कोविड? आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप आपके रेगुलर फिजिशियन को जाके कंसल्ट कीजिए, या फिर कोई कोविड स्पेशलिस्ट को जाके कंसल्ट कीजिए। अगर आपको सांस की तकलीफ है, अगर आपको बहुत ज्यादा थकान हो रही है, तो आपको लंग फंक्शन टेस्ट या स्पायरोमेट्री नाम की एक जांच की जाएगी, जिसमें आपके लंग्स के फंक्शन देखे जाएंगे। हो सकता है आपको कोविड होने के 2 या 3 महीने बाद भी सीटी स्कैन करने की जरूरत पड़े, जिसमें डॉक्टर को यह अंदाजा आ सकता है कि आपके जो कोविड के फाइब्रोसिस के जो साइंस है वो पहले से बेहतर हुए हैं या पहले जितने ही है, या हो सकता है पहले से ज्यादा बिगड़ गए। तो ये 2 टेस्ट कॉमनली किए जाते हैं। इसके बाद हो सकता है आपको हार्ट की टेस्ट करनी पड़े, 2D इको नाम की एक जांच करनी पड़े, और आपकी कुछ ब्लड पैरामीटर्स मतलब ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिससे ये अंदाजा लगता है कि आपको पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स है या नहीं। अगर आपको स्किन के इश्यूज है तो आप एक स्किन डॉक्टर को दिखा सकते हैं, क्योंकि वो फिर आपको बता सकते हैं कि हेयर फॉल या रैश के लिए आपने एग्जैक्टली क्या ट्रीटमेंट लेना है। ओके ओके सर, ओके। एंड सर ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे पोस्ट कोविड? पोस्ट कोविड में काफी बार ऐसा होता है कि आपकी कोविड रिकवरी के बाद आपके जो डॉक्टर है, फिजिशियन है या कोविड स्पेशलिस्ट है, वो आपको कुछ मेडिसिन कंटिन्यू करने के लिए कहे, जिसमें एक इनहेलर होता है, जिसमें कोशिश की जाती है कि आपको सांस की तकलीफ ना हो। दूसरा, कई बार पेशेंट्स को ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं ताकि आने वाले समय में उनको खून की गठन ना हो या फिर पैरालिसिस का अटैक ना आए। तो ये 2-3 दवाइयां हैं जो आपको कोविड रिकवरी के बाद कंटिन्यू की जाती है। इसी के साथ में अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम्स नजर आते हैं, तो स्पेसिफिक सिम्टम के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है। पोस्ट कोविड का एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो काफी सारे पेशेंट्स को कोविड रिकवरी के बाद एंग्जाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, कभी कभी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर रहता है। ऐसा होता है कि आप अगर आईसीयू में एडमिट है, आप काफी लंबे समय तक हॉस्पिटल में है, तो इस वजह से आपके मन में किसी तरीके का डर बैठ जाता है, जिसको प्रॉपर थेरेपी की जरूरत होती है, जिसके लिए आपने एक
ट्रेन्ड थेरेपिस्ट के पास जाना जरूरी है। तो आपको फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम पोस्ट कोविड की बात करते हैं। जी सर, जी। तो सर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा? लाइक आई एम श्योर कि लास्ट 1 ईयर में आपने कई सारे पेशेंट्स देखे होंगे पोस्ट कोविड। सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद दीज पेशेंट्स? पिछले 1 साल में मैंने 4 कोविड सेंटर की कोविड टीम्स को लीड किया है और कोविड पेशेंट्स के साथ में ही हमने काफी सारे पोस्ट कोविड पेशेंट्स भी देखे हैं। सबसे ज्यादा हमने ये देखा है कि लोगों को कोविड रिकवरी के बाद भी लंग्स में फाइब्रोसिस रहता है, उनके सीटी स्कैन में फाइब्रोसिस की साइंस रहती है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। ये सबसे कॉमन कंप्लेंट रही है पोस्ट कोविड पेशेंट्स की। और दूसरी एक कंप्लेंट रहती है सीवियर बॉडी एक या वीकनेस की, मतलब लोगों को अपनी रेगुलर एक्टिविटीज करते वक्त थकान महसूस होती है। पहले जो भी वो एक्टिविटीज करते थे उस लेवल की एक्टिविटी वो अभी करने को काफी सारी दिक्कत महसूस करते हैं। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है। इसके साथ में मैंने पर्सनली ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं, यंग पेशेंट्स देखे हैं जिनको पैरालिसिस का अटैक आया है, जिनको ब्रेन स्ट्रोक आया है। हो सकता है उनको कोविड 1 या 2 महीने पहले हुआ था। साथ ही में काफी सारे पेशेंट्स हैं जो एंजाइटी और डिप्रेशन के भी शिकार बने हैं। कोविड के बाद में उनको थेरेपी एडवाइस की गई है, जिससे उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ है। और साथ ही साथ लोगों को स्किन इश्यूज आए हैं, लोगों को हार्ट के इश्यूज आए हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कोविड के बाद में लीवर या किडनी रिलेटेड इश्यूज आए हैं। काफी सारे लोगों को हम जो एक अक्यूट किडनी फेलियर बोलते हैं, मतलब आपकी किडनी की काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो ये सारे इश्यूज हमने देखे हैं कोविड के पेशेंट्स में पोस्ट कोविड रिकवरी पीरियड में। और कुछ पेशेंट्स लॉन्ग कोविड रहते हैं, मतलब ये वो पेशेंट है जो कोविड पॉजिटिव आने के बाद भी बहुत लंबे समय तक, मतलब कभी कभी 1 से 2 महीने तक हॉस्पिटलाइज रहते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। इनको ऑक्सीजन की लगातार जरूरत लगती है और बहुत बार घर जाने पे भी इनको घर पे ऑक्सीजन लेना पड़ता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है पोस्ट कोविड पेशेंट्स के साथ। ओके, ओके सर। सर और आपने कैसे अपने आप को मेंटेन किया? क्योंकि डॉक्टर समीर सर ही हिमसेल्फ इज इनटू फिटनेस एंड सिंस लाइक इतने सालों से मैं सर को जानती हूँ। सर रेगुलरली लाइक उनके स्टडीज के टाइम भी जिम एंड सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू हैव बीन इन्वॉल्व्ड एंड आई एम अवेयर दैट यू फॉलो अ वेरी गुड लाइफस्टाइल एज वेल. So sir, what about it? Like I get many questions कि कि lung health COVID का relation, what is its relation with lifestyle? So sir, आप अपना experience बताना चाहेंगे? How did you maintain yourself since COVID started? Yes, so honestly speaking, I could not maintain my health or my daily routine since COVID started, and this was majorly because बहुत ही stressful situation थी। बहुत काफी लंबे समय से कोविड ड्यूटीज हमारी चल रही थी। ऑलमोस्ट रोज सुबह हम 10 या 11 बजे पीपी किट पहनते थे, तो शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक पीपी किट उतार नहीं पाते थे। इस वजह से अनफॉर्चुनेटली मैंने ऑलमोस्ट 12 महीने के लिए लंच स्किप किया है। मेरा 8 to 10 kgs वेट लॉस हुआ है, जो रिकवर करना अभी काफी मुश्किल जा रहा है। बट अभी जैसे कोविड की केसेस कम हुई है तो मैंने थोड़ा एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया है। बेसिकली हफ्ते में 3 से 4 दिन के लिए एटलीस्ट 20 मिनट्स का एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट किया है। जब हम बात करते हैं कोविड और लाइफस्टाइल की, तो कोविड ने हमको सबसे ज्यादा जो अफेक्ट किया है हेल्थ छोड़ के, वो है हमारी लाइफस्टाइल पे। इसमें से कुछ प्रॉब्लम जो है वो कोविड से रिलेटेड नहीं, लेकिन लॉकडाउन या रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड है। पर आप कोविड को ब्लेम कीजिए या रिस्ट्रिक्शंस को ब्लेम कीजिए, हम सब लोगों की लाइफस्टाइल पे इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट रहा है। और लाइफस्टाइल चेंजेस को फिर से पटरी पे लाना या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस को ठीक करना, ये भी कोविड के थेरेपी का एक पार्ट है। एंड आई सपोज डॉक्टर रोमा इज द राइट पर्सन टू गाइड यू विद द लाइफस्टाइल चेंजेस। पर्सनली व्हाट आई हैव रेड एंड व्हाट द गाइडलाइन से इज कि अगर आपको कोविड हुआ है तो आपने एटलीस्ट 1 मंथ के लिए बेड रेस्ट लेना है या फिर आपने मैक्सिमम रेस्ट लेना है। जरूरी नहीं कि आप बेड रेस्ट लीजिए, बट आप किसी भी तरीके का स्ट्रेनस एक्सरसाइज मत कीजिए। ऐसी कोई भी एक्टिविटी मत कीजिए जिसमें आपको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो। फिर धीरे धीरे 1 या 2 महीने बाद आप रैम्प पैटर्न में, मतलब आप पहले 1 हफ्ते के लिए रोज 10 मिनट एक्सरसाइज कीजिए, फिर अगले हफ्ते 10 का 15 मिनट कीजिए। धीरे धीरे आपकी एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश कीजिए।
कोविड के समय में हमारा डेली रूटीन डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से हमारा डाइट और हमारा एक्सरसाइज सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है। तो आपने कोशिश करना है कि आपकी जो भी लिमिटेशंस है, अगर आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आपने अपने डेली रूटीन में समय निकालना है एक्सरसाइज के लिए, और आपने अपने डाइट को किसी भी तरीके से निग्लेक्ट नहीं करना है। अगर आपको किसी भी तरीके के एडिक्शंस है, तो ये एडिक्शंस आपको इस कोविड समय में और ज्यादा मुश्किल में डाल सकते हैं। तो आपके एडिक्शंस पे कंट्रोल पाना भी बहुत जरूरी है। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि एवरी 20 to 30 मिनट्स आपने अपनी चेयर से उठ के ऑलमोस्ट 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है, आसपास आपके रूम में या आपके कॉरिडोर में चलना है, और फिर यू कैन गो बैक टू कंटिन्यू योर वर्क। बट अगर आप बहुत लंबे समय तक एक ही चेयर पे बैठे रहते हैं और आप आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो इसके भी बहुत दुष्परिणाम हो सकते हैं। जी सर, जैसे कि डॉक्टर समीर अरबत सर ने हमें बताया, बहुत इम्पोर्टेंट है कि लाइफस्टाइल अच्छे से मेंटेन हो। ऑब्वियसली जो ट्रीटमेंट थेरेपी है वो प्राइमरी ट्रीटमेंट मेन लाइन जो भी पल्मोनोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे वो रहेगा, बट एज एन एडजंक्ट प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इम्यूनिटी, बाकी फिटनेस एंड बेसिकली रिकवरी एस्पेक्ट के हिसाब से। एंड लाइक सर सेड, बेसिकली इट्स द सेम, आई वुड हैव सेड द सेम अबाउट एक्सरसाइज वगैरह की ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, हाई इंटेंसिटी नहीं करना है। दिस इज व्हाट आई हैव बीन गाइडिंग द पोस्ट कोविड पेशेंट्स. So sir, we have a few commonly asked questions which we can answer together, and you can just pitch in what are your views on it. तो जैसे experience with post covid patients जो आपने बताया सर कि stress, mental health, I have the same experience, like बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाना, ओवर थिंकिंग, एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने का थोड़ा एक मतलब वो जागरूक हुआ है सबके अंदर कि वी हैव टू बी हेल्दी, बट फॉलो नहीं कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग बहुत हो रहा है कि ये करना है, क्या खाऊं क्या नहीं, देन विटामिन सप्लीमेंट्स एवरीथिंग, बट बेसिक चीजें जो फॉलो होनी चाहिए कि ट्राइंग टू सप्लीमेंट नेचुरल सोर्सेस इन योर डाइट, वो सब कुछ भी नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा शॉर्टकट्स, लोग शॉर्टकट्स के तरफ जा रहे हैं स्ट्रेस आउट होके। दिस हैज बीन माय एक्सपीरियंस, एंड ऑफ ट्रैक हो जाना, लाइक डॉक्टर समीर अरबत सर आल्सो सेड कि वो तो एक डॉक्टर है एंड ही हैज बीन वर्किंग रियली हार्ड कोविड पेशेंट्स के लिए। सो आपके लिए तो सर बनता है कि आपका थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाए, बट इवन द जनरल पॉपुलेशन जो फॉलो कर पाए होते वो लोग भी बहुत ऑफ ट्रैक हो गए हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है घर पे रह के। So I'm of the same opinion as you sir on this, and role of lifestyle therapy जैसे कि sir ने बताया, मेरा बस इतना कहना रहेगा कि try not to go for shortcuts. बहुत जल्दी people tend to fall for all the shortcut methods like extreme dieting हो गया या बहुत vigorous exercise, and like sir also said कि बहुत high intensity suddenly नहीं चालू करना है, थोड़ा gradually करके increase करना है, like you said sir. So how to get back in shape is one of the most commonly asked questions. So what do you think? What should we do to get back in shape post COVID? तो आप अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं कि व्हाट टू डू टू गेट बैक इन शेप इन पोस्ट कोविड, तो पहली चीज तो है कि आपको जो भी डॉक्टर्स ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, आपको जो भी ट्रीटमेंट दी गई है, आपने उसको प्रॉपरली कंटिन्यू करना है, प्रॉपरली फॉलो करना है। अगर आपके फिजिशियन या कोविड स्पेशलिस्ट ने आपको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद चेकअप के लिए बुलाया है, तो आप प्लीज उसको स्किप मत कीजिए, क्योंकि कोविड हो सकता है आपको माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, बट ये एक बहुत सीरियस बीमारी है, आपके बॉडी के किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती है। तो मेडिकेशन और डॉक्टर कंसल्टेशन को स्किप नहीं करना है। जैसा मैंने पहले कहा कि आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैक्सिमम रेस्ट लेना है, ताकि आपकी बॉडी की मैक्सिमम रिकवरी हो सके। और आपके डाइट और एक्सरसाइज में अभी ऐसे कोई चेंजेस आएंगे जो आपको पोस्ट कोविड में ज्यादा आपके बॉडी पे स्ट्रेस ना लाए, और साथ ही में आपको फिजिकल और मेंटल फिटनेस में हेल्प करे, जिसके लिए आई सपोज डॉक्टर रोमा विल बी द बेटर पर्सन टू गाइड यू. So, Dr. Roma, what do you feel are the methods to get back in shape in post-COVID?
Sir, like you said, ki 1 to 2 months not bed rest, but minimum physical activity and not straining yourself too much. And then eventually you have to start exercising. मतलब हम हमेशा एकदम sedentary नहीं रह सकते हैं. तो once you start थोड़ा थोड़ा recovering, थोड़ा थोड़ा gradually करके, and exercise से भी पहले थोड़ा general जो body movements होती है, उठना, पानी की bottle लेने जाना, washroom जाना, जो भी मतलब घर पे जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा के देन स्टार्ट विद एक्सरसाइज, देन थोड़ा थोड़ा करके इंटेंसिटी बढ़ाओ, वो रहेगा. एंड नॉट टू फॉरगेट प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन एंड डाइट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड गेटिंग बैक इन शेप में सर, जैसे कि अभी तो हम पोस्ट कोविड पेशेंट्स की बात कर रहे हैं, तो दे आर प्रिस्क्राइब्ड विद जिंक, विटामिन सी सप्लीमेंट्स वगैरह. सो व्हाट डू यू थिंक, टिल व्हेन शुड दे कंटिन्यू विद दिस? देखिए, एवरीबडी नीड्स टू नो कि आपके जो विटामिन टैबलेट्स है, जिंक टैबलेट्स है, ये मेडिकेशन नहीं है, सप्लीमेंट है. मतलब ये आपके रेगुलर डाइट में जो भी चीजें मिसिंग है उसको ये सप्लीमेंट कर रही है. तो अगर किसी तरीके से आप आपका डाइट इंप्रूव कर सकते हैं, मतलब आप एक बैलेंस डाइट लेते हैं जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन विथ सम बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फ्यू फैट्स अगर रहते हैं, तो आपको अदरवाइज सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है. अनफॉर्चुनेटली इंडियन डाइट में थोड़ा सा विटामिन लैकिंग रहता है, इसलिए हम पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि वो विटामिन सप्लीमेंट्स ले. कोई भी चीज ज्यादा लेने में या ज्यादा लंबे समय तक लेने के भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो आपने अपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना कोई भी इनमें से कोई भी सप्लीमेंट लेना नहीं है. आपकी ब्लड लेवल्स चेक की जाती है, आपका विटामिन D3 चेक किया जाता है, B12 चेक किया जाता है, जिससे डॉक्टर्स को ये पता चलता है कि आपके बॉडी में कौन से विटामिन लैकिंग है. तो इस हिसाब से आपकी मेडिकेशंस डिसाइड की जाती है. तो आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, और साथ ही में अगर आपका डाइट ठीक रहता है तो आगे जाके आपको इनमें से कोई भी सप्लीमेंट्स की जरूरत कम पड़ती है. जी सर, जी सर. जैसे कि आपने एकदम सही सही बात बोली सर. एक जैसे कि 100% सप्लीमेंट पे रहने से अच्छा अगर 80% भी सप्लीमेंट है, एटलीस्ट 20% ट्राई टू गेट द सेम विटामिन फ्रॉम डाइट ऑल्सो. तो लाइक यू सेड कि इंडियन डाइट में थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड सोर्सेज हो जाते हैं, थोड़ा अलग से एफर्ट्स लगते हैं हमें कि क्या कहाँ से ये विटामिन मिनरल्स मिले ना मिले. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जिंक लोगों को नहीं पता कहाँ से मिलेगा, या विटामिन सी सोचा तो सिर्फ ऑरेंजेस इज व्हाट कम्स टू एनीवन्स माइंड, but there are so many other sources, so we have to find those sources and include them in our diet. So there are various sources for all the vitamins if you just search. So yes, that's it. And don't go for shortcuts, don't go for extreme diets, especially post covid, क्योंकि recovery phase में होते हैं patients. So sir, what are your takeaway tips for all the post-COVID patients जो भी COVID-19 से recover हुए हैं, considering their lifestyle, fitness, diet? So it would be best coming from a pulmonologist because people believe in you. Yes, so basically, if I have to sum up whatever is the gist for post-COVID care या post-COVID recovery, so the first thing is that आपने अपनी medications regularly लेना है, आपने अपने डॉक्टर का जो भी फॉलोअप है वो कंटिन्यू रखना है. इसी के साथ में कोविड ने हमको ये सिखाया कि हेल्थ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. तो जब भी बात आती है एक्सरसाइज की, जब भी बात आती है डाइट की, तो आपने एक न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट या एक लाइफस्टाइल स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए. इनमें से काफी सारी चीजें ऐसी है जो इंटरनेट पे शायद आपको पढ़ने को मिले, बट वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन रहती है या फिर उसको एग्जीक्यूट करना आसान नहीं रहता है. तो इसके लिए आपने स्पेशली एक न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट या तो फिर एक लाइफस्टाइल स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए. कोविड और पोस्ट कोविड में फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ का भी बहुत बड़ा रोल है. तो आपको अगर किसी भी तरीके की एंजाइटी है, डिप्रेशन है, अगर आपको लगता है कि आप काफी ज्यादा निराशा में हैं, या आपको हर किसी बात पे, छोटी छोटी बात पे एकदम से एंजाइटी होती है, आपको डर लगता है कि शायद आपको फिर से कोविड हो जाएगा या और कुछ हो जाएगा, तो ये सारी चीजों के लिए आपने एक प्रॉपर थेरेपी सेशन लेना भी जरूरी है. बेसिकली आपने अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है, और एक एक्सपर्ट की सलाह लेना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा.
जी सर, आपने बहुत अच्छे से सम अप किया है जो भी हमने आज बातें की है. सो आई एम वेरी श्योर कि सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा. सो थैंक यू सो मच सर, आज आपका टाइम निकालने के लिए और हमें इतना सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए. And so Dr. Sameer sir is going to do a few more sessions for us. So feel free to drop in any questions, and if you have any topic suggestions, and we will forward it to him and he'll answer it for us. So sir, thank you so much again. Thank you.